हमारे बीच में आदरणीय दादी जानकी जी पहुंची हैं और हम सब करतल ध्वनि से आदरणीय दादी जानकी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा ये कितना ना बड़ा सौभाग्य है, हम सब की प्रेरणा की स्रोत। दादी जी हमेशा कहती हैं अपने जीवन के अंदर हर कार्य के लिए दृढ़ संकल्प करो तो हर कार्य में सफलता हुई है। इसलिए आदरणीय दादी जी के लिए हम एक बार जोर से करतल ध्वनि से उनसे मिलने की खुशी प्रकट करते हैं और जोर से बजाएंगे। अब इसके बाद हमारे बीच हैं ऑनरेबल श्री जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। Honorable Shri G. Kishan Reddy is Indian politician and the Minister of State for Home Affairs, Government of India. He is a member of BJP. He is the member of Parliament representing Secunderabad Parliament constituency. First time in 2019 and was the floor leader of BJP in the state legislature after state assembly election 2009. He is the state BJP president of Restwhile Andhra Pradesh. He is a youth leader. And now I request Honorable Shri G. Kishan Reddy, Minister of State for Home Affairs, Government of India, New Delhi, to present his views on this occasion. Good evening, Honorable Sri Ravi Shankar Prasad ji, Minister Law and Justice, Government of India, आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय बीके ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय बीके मृत्युंजय भाई जी, प्रकाश जी, आदरणीय डॉक्टर बी पार्थसारथी रेड्डी गारू, सीएमडी एट्रो ग्रुप हैदराबाद, आदरणीय राज्यसभा के सदस्य गोपाल नारायण सिंह जी, मनोज माथुर जी, राजयोगिनी बीके संतोष बहन जी, राजयोगिनी बीके संतोष बहन जी, ब्रिजमोहन जी और अन्य नेतागण, we equate Sabha, the August gathering, as a goddess Saraswati, god of learning. I offer my pranams to the Sabha Saraswati. It is a great pleasure for me that I have been invited to this spiritual place of Brahma Kumaris for Global Summit cum Expo on spirituality for unity, peace and prosperity. The theme of this Global Summit is well thought of. Without unity, there is no peace, and one cannot imagine prosperity without peace. I wholeheartedly agree with the conference theme and join hands with everybody in starving the unity, peace and prosperity. You have rightly said that spiritually, for unity, peace and prosperity
should be discussed and decided. The spirituality is the spirit of the Indian culture that shows the path of achieve liberation. It builds the character and bends the entire universe into Vasudaika Kutumbam. Our rishis and munis have enriched our nation in spiritual field and taught whole world the importance of spirituality. India is the Jagat Guru in spirituality and cultural progress and entire humanity. Brahma Kumaris believe that entire living creates Prajapita. We are all people of Brahma. I am elated to know the spirituality centric programs are arranged here for different professionals at regular intervals. Spiritual empowerment inculcate positive thinking among the youth. It helps in self-management and stress-free management in businessmen, industrialists, corporate executives, students, including politicians, administrators, serving elected representatives, etc. We are now a crucial junction in human history. Environmental pollution, poverty, overpopulation, unemployment, nuclear weapons are all posing a great risk to the society. We all should work towards self-transformation and making world a better place. Humanity today has all the resources, tools and talents for establishing the earth. Spiritual empowerment gives the right direction in human life. This is enormous potential as to be utilized for the well-being of all. I am happy thus this summit is aimed to encourage people to acquire power of silence through Raja Yoga meditation. Knowing and experience self as an internal soul projects us to the higher feelings. It gives us a deeper sense of self-worth. The power of silence achieved through meditation and human soul, the freedom of experience, inner powers like peace, tranquility and bliss. I like this flagship slogan for this Brahma Kumaris has been, when we change, the world changes. It was the reason that Brahma Kumaris consider bringing about this kind of change within self as an important form of the world service. I yearly congratulate respected Rajayogini Dadi Janaki ji, Chief of the Brahma Kumaris, and her dedicated team of divine sisters and brothers for selflessly taking upon themselves the commendable task of restoring values in society through spiritual alignment, and this once again restore our beloved Bharat to its innocent glory. हम उस देश का वासी है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है. ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वेरी इंस्पायरिंग. और हमें इस बात का गर्व है, हम ऐसे देश के वासी हैं जो सारे विश्व के सामने एक लाइट हाउस के रूप में है. सारे विश्व को गाइड किया है, वैसे ही फिर से वो गाइड करेगा. इसके बाद हम मीडिया से कुछ भाइयों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा सोर्स है सारे विश्व के अंदर एक सेकंड के अंदर जागृति भी ला सकता है और एक सेकंड में सारी न्यूज़ भी दे सकता है. मीडिया के द्वारा सारा विश्व
एकत्रित हो गया है, एक छोटे परिवार की तरह दिखाई देता है। मीडिया की तो अनेक भाई बहनों ने अनेक प्रकार की सेवाएं की हैं, लेकिन कुछ एक को आमंत्रित कर रहे हैं जिनका अभी सम्मान किया जाएगा। भ्राता दीपक कुमार झा, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द पॉइनर। दूसरे हैं चंद्रभूषण, भाई चंद्रभूषण जी, सीनियर फीचर एडिटर नव भारत टाइम्स। और तीसरा है गुलशन राय खत्री, मेट्रो एडिटर नव भारत टाइम्स। आपसे निवेदन है मंच पर आए, आपका हम सम्मान करते हैं और इनके सम्मान में सभी का सम्मान समाया है। हम सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन की जागृति भी लाता है और सारे विश्व की जानकारी मिलती है और अपने आप को पहचानने में और सही दिशा में जाने की भी जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे। अब इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, अपने विचार प्रकट करेंगे। ऑनरेबल श्री रविशंकर प्रसाद इज एन इंडियन लॉयर, politician and the current Union Minister holding the law and justice, communication and electronics and information technology and portfolios in Government of India. A member of the BJP, Honorable Shri Ravi Shankar ji is representing the Patna Sahab Lok Sabha constituency during the NDA government. Under Atal Bihari Vajpayee's Prime Ministership, Prasad ji was appointed Minister for Coal and Mines, Minister of Law and Justice, Minister of Information and Broadcasting. In 2018, according to the Economic Times, he featured among the top 20 influential world leaders in digital technology, e-government. Under his tenure, India significantly improved digital inclusion coverage in rural areas, and his department's work on the cyber security, data privacy, and several new e-government activities have been considered as creating a digital India. He has done so much for the country. आपने इन डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत कुछ किया है और अभी लॉ एंड जस्टिस के द्वारा भी आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आप आए और यहाँ पिताश्री जी ने हमें एक बात सिखाई कि लॉ को फॉलो करने में साथ साथ लव का भी बैलेंस हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो अच्छी तरह से वह लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हम सुनेंगे आज के सेशन के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री रविशंकर प्रसाद जी से। परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, मेरे मित्र भारत के गृह राज्य मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद राज्यसभा के श्री गोपाल नारायण सिंह जी, राजयोगी बीके ब्रिजमोहन जी, राजयोगिनी बीके संतोष बहन, राजयोग टीचर बीके सविता, all the distinguished ladies and gentlemen sitting on the dais, देवी और सज्जनों,
ब्रह्म कुमारी आंदोलन के सभी भक्तजनों, आप लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। पिछले 3-4 वर्षों से आग्रह था कि मैं यहां आऊं। मेरा दुर्भाग्य था कि कई कारणों से मैं यहां नहीं आ पा रहा था। इस बार मैंने भी फैसला किया था, तमाम व्यस्तताएं होंगी, लेकिन इस बार जाऊंगा। और माउंट आबू में आकर इस परिसर में मैंने जो ऊर्जा, उत्साह, शांति और विश्वास देखा है वो बहुत ही अभिनंदनीय है, बहुत प्रेरणादायक है। आज मैं कैंपस घूम रहा था और ब्रह्म कुमारी आंदोलन का सबसे बड़ा मुझे अभिनंदन करना है कि आज 140 देशों में चेतना, ध्यान, आत्मा के सशक्तिकरण और अच्छे इंसान बनाने का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। मेडिटेशन, अवेकनिंग ऑफ द सोल, डिजाइन टू मेक ए गुड ह्यूमन बीइंग, और ये काम अनवरत चल रहा है। और जो काम के लिए मैं सबसे अधिक प्रभावित हूं, जिस तरह से नारी शक्ति के सम्मान में ब्रह्म कुमारी आंदोलन ने काम किया है, वो इतिहास में लिखा जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। भारत के बारे में हमेशा चर्चा होती है। भारत क्या है? क्या भारत एक भौगोलिक एंटिटी है? इज इंडिया ज्योग्राफिकल एंटिटी? क्या भारत सिर्फ एक देश है? भारत तो एक देश है। इंडिया इज ए पॉलिटिकल एंटिटी। भारत की एक सीमा भी है, लेकिन सबों से ऊपर इंडिया इज ऑल्सो हैज ए डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल एंटिटी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। भारत की एक आध्यात्मिक परंपरा है। और क्या है उसका सार? उसका सार है जो ऋग्वेद से आता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम्हारे सत्य का मार्ग ये है, तुम उस मार्ग पे चलो। मेरे सत्य का मार्ग ये है, मैं उस मार्ग पे चलूंगा। मैं तुम्हारे सत्य के मार्ग का सम्मान करूंगा और तुम मेरे सत्य के मार्ग का सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग एक ही स्थान पर जाता है, जो है परम सत्य, स्थायी, सनातन, अविभाज्य। यह है भारत की सोच। और इसीलिए सत्य की खोज को शांति और सद्भाव के साथ जो भी आंदोलन चलता है वो सफल होता जाता है। एनी मूवमेंट ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअलिटी इन क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ ऑलवेज गेट्स सक्सेस। हजारों साल से कितने संतों ने, स्वयं परमपिता बाबा जी ने, कभी विवेकानंद ने, कभी रामकृष्ण परमहंस ने, कभी रमन महर्षि ने, कभी महर्षि अरविंद ने, कभी महात्मा गांधी ने अपने तरीके से सत्य की खोज की और देश को एक मजबूत देश के रूप में लाने की कोशिश की। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत अपने विचारों को मनाने के लिए कभी तलवार लेकर दुनिया में नहीं गया। हमेशा प्रेम, सद्भाव, समन्वय और आदर के साथ गया। यह भारत की परंपरा। इसीलिए अभी जो मित्रवर कृष्ण रेड्डी जी ने बताया, कल हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने यूएन में भाषण देते हुए क्या कहा था? भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। बुद्ध शांति, सद्भाव, युद्ध नहीं। और पीस एंड हार्मनी
is the essence of India's value system. शांति और सद्भाव, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण समझना जरूरी है। इसीलिए जब ये सोच होती है तो भारत की बड़ी सोच क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है, और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्वामया, सभी सुख हों, सभी प्रसन्न हों, लेट द इंटायर ग्लोब बी हैप्पी, तभी तो होगा वसुधैव कुटुंबकम। तो ये खुशी क्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक होगी? नहीं, ये खुशी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उस खुशी में चेतना का निर्माण नहीं हो, और वो तब आएगी जब ध्यान से आत्मा को शक्ति प्रदान की जाएगी। मुझे ब्रह्म कुमारी की जो सबसे बड़ी बात प्रभावित करती है वो क्या है? व्यक्ति निर्माण जरूरी है। समाज उतना ही बदलता है जितना बदलने की बात करने वाले अपने आप को बदलते हैं। इस बात को समझिए। द सोसाइटी चेंजेस टू द एक्सटेंट दोज हु टॉक ऑफ चेंज चेंज देमसेल्व्स। और जब भी आप ब्रह्म कुमारी के किसी भी परिसर में जाइए, मुझे गुड़गांव के परिसर में जाने का अवसर मिला, आईटी के प्रोफेशनल्स का इन्होंने कैंप किया था, तो आई कुड सी एज टू हाउ एवरीवन इज फीलिंग द स्पिरिट ऑफ चेंज। ये ब्रह्म कुमारी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। दूसरा चिंतन क्या है हमारे देश का? सब कुछ करो लेकिन दूसरे की चिंता करो। क्या कहा था कबीर दास ने? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना दो कि मैं अपने परिवार की चिंता तो कर सकूं, लेकिन अगर कोई गरीब मेरे द्वार पर जाए तो मैं उसे भूखा न लौटाऊं। यह है भारत की सोच। और महात्मा गांधी ने कहा था, जिनकी 150वीं जयंती 2 अक्टूबर को है, देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज नॉट एनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ये आवश्यकता और लालच, इन दोनों के बीच भारत के संस्कारों ने बहुत बड़ी एक सेतु बनाने की कोशिश की है। धनोपार्जन करो लेकिन लालची मत बनो, और धनोपार्जन करते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अगर प्रभु ने तुम्हें धनोपार्जन करने की क्षमता दी है तो उन्होंने तुम्हें एक निमित्त माना है। अपने लिए कमाओ और समाज के लिए काम करो। ये जो भारत की सोच है, यही तो सनातन है। मैं हमेशा कहता हूं, सनातन संस्कृति क्यों? वो सनातन उस सत्य का उद्भाषण जो शाश्वत है, चिरंतन है, परमानेंट एंड इटर्नल। हम पर्यावरण की बात करते हैं, अच्छी बात है, हर क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी काम करते हैं। भारत की परंपरा पर्यावरण में क्या है? पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा क्लाइमेट जस्टिस, पर्यावरण में न्याय होना चाहिए। और देखिए हमारे ऋषियों ने पर्यावरण को कैसे सम्मान दिया। जो भी ऐसे पेड़ थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, उनको आध्यात्मिक रूप दे दिया। बरगद का पेड़ ऊपर के पानी को लेता है, जमीन में भेजता है, तो बरगद को सम्मान दे दिया, उसके आगे धागा बांधो, बनियन ट्री। पीपल का पेड़ ऊपर से पानी लेता है, जमीन के अंदर पानी भेजता है, तो पीपल को भी आध्यात्मिक मानो। नीम का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसको भी एक सम्मानजनक। और ऐसे कई पेड़ आप देखेंगे। अंग्रेजों की गुलामी के चक्कर में हम चले गए ऐसे पेड़ों की तरफ जो पेड़ नीचे का पानी लाते हैं और ऊपर फेंकते हैं। दे ड्राई अप द अंडरबेली ऑफ द अर्थ। ये जो अपनी परंपरा हमेशा रही है,
आज उसको नए तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जब पत्रकारों को सम्मान मिला है तो मैं पत्रकारों को बधाई दूंगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि पत्रकार देश की इस परंपराओं के बारे में भी इस देश की जनता को बताए। भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम कानून का भी सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार था तो उस कानून को सख्त किया, फांसी की सजा भी दी। बच्चों के खिलाफ व्यभिचार था तो उसमें भी बहुत सख्त किया, फांसी की सजा तक दिया है। स्पेशल कोर्ट्स भी बना रहे हैं। 3 तलाक पर भी हम लोगों ने सख्त काम किया है। आर्टिकल 370 को भी खत्म किया है। तो कानून अपना काम तो करेगा, लेकिन हमारे पत्रकार मित्रों का यह भी काम है कि आलोचना भी करें, व्यंग्य भी करें, हास्य भी करें, नेताओं की खूब आलोचना भी करें, लेकिन कहीं व्यक्ति निर्माण का काम हो रहा है तो समाज को उसकी जानकारी भी दें। ये बहुत जानना जरूरी है। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में लगभग 18,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं और 130 करोड़ के हिंदुस्तान में लगभग 900 रजिस्टर्ड टेलीविजन चैनल हैं और जिसमें 250 न्यूज चैनल है, हिंदी में, इंग्लिश में और स्थानीय भाषाओं में, जिसमें काफी सेंस की बात करते हैं और कुछ नॉनसेंस की भी बात करते रहते हैं। ये उनका काम है, करना चाहिए। तो सारे काम आप करिए, लेकिन उसके अंदर एक विंडो होना चाहिए कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ व्यक्ति निर्माण का काम हो रहा है, उसको बताना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि जिन पत्रकारों को आज पुरस्कार मिला है या बाकी जो हैं, ब्रह्म कुमारी के द्वारा गरीब बच्चों के लिए, पर्यावरण की दिशा में, ऑर्गेनिक खेती की दिशा में, आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से नौजवानों के स्वभाव के बदलाव के बारे में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं उनको भी बताना चाहिए। तो लोग सुधरेंगे, लोग समझेंगे। और मैं अपने पत्रकार मित्रों को हमेशा कहता हूं कि नटखट समाचार जल्दी नहीं बिकता, ज्यादा नहीं टिकता, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छी बात की तो लोगों के दिमाग में आता है कि देश में वो अच्छा काम हो रहा है। आज सोशल मीडिया का भी युग है। 130 करोड़ के हिंदुस्तान की आबादी है। इस 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 120 करोड़ मोबाइल फोन है, 50 करोड़ स्मार्टफोन है, 123 करोड़ आधार कार्ड है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश को बदल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 2014 में एक विजन दिया था कि हम अपने सरकार में एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्लस इंडियाज टैलेंट IT इज इक्वल टू इंडिया टुमारो IT। ऐसा देश हमको बनाना है, लेकिन आम हिंदुस्तानी मजबूत बने और वो विकास समावेशी विकास होना चाहिए। तो आज अब देखिए हम समावेशी विकास कैसे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमने 37 करोड़ बैंक अकाउंट खोला गरीबों का, उसको आधार से जोड़ दिया, बायोमेट्रिक्स, डिजिटल आइडेंटिटी, मोबाइल से सीड कर दिया और हमने गरीबों के सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स का पैसा उनके बैंक अकाउंट में सीधा भेजना शुरू किया। लगभग 7,70,000 करोड़ रुपया हमने भेजा है पिछले 5 साल में और हमने 1.5 लाख करोड़ रुपया बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो डिजिटल गवर्नेंस से आम इंसान कैसे मजबूत होता है। आज क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि देश में अब सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है तो सोशल मीडिया पर देश की आध्यात्मिक परंपरा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए 3 शब्द हैं। एक होती है दृष्टि, आपके देखने का नजरिया क्या है, उससे निकलती है आपकी वृत्ति, आप क्या करने जा रहे हैं,
उससे आप आगे बढ़ते हैं अपनी कीर्ति कृति, आपका व्यवहार कैसा होगा, और उससे बनती है आपकी सृष्टि। तो ये दृष्टि, वृत्ति, कृति और सृष्टि, इसके बीच में घालमेल होता है तो व्यक्ति का निर्माण गड़बड़ाता है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहां सोशल मीडिया एक तरफ व्यंग, हास्य, विनोद, आलोचना का केंद्र है, तो वहीं ये आध्यात्मिक परंपरा को भी आगे बढ़ाता है। आज आप देखते हैं योग सोशल मीडिया पर है, बड़े बड़े भारत के संतों का जीवन सोशल मीडिया पर है। रामकृष्ण विवेकानंद का 1893 का शिकागो का भाषण, यू कैन हियर इट ऑन सोशल मीडिया। आज भारत के आध्यात्मिक परंपरा का इतिहास एट ए क्लिक ऑफ ए बटन सोशल मीडिया पर है। ब्रह्म कुमारी की परंपरा, उनका योगदान, ये सोशल मीडिया पर नहीं, और सोशल मीडिया के बदलने का बड़ा प्रभावी माध्यम है। आपने देखा होगा एक गरीब बूढ़ी बंगाल के रेलवे स्टेशनों पर गाकर भीख मांगा करती थी, उसके स्वर में बहुत दम था। एक नौजवान ने उसको अपने फेसबुक पर डाल दिया, वो आज भारत का रेज बन गई और उसको बड़े बड़े कार्यक्रम में लाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया करता है। तो सोशल मीडिया का सार्थक स्वरूप भी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद, इसको प्रमोशन करने वाला माध्यम नहीं बने। जब हम ये समझ के चलेंगे तो मीडिया की भूमिका और बाकी सोशल मीडिया की भूमिका सामने आएगी। एक अंतिम बात मैं बहुत संक्षेप में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ब्रह्म कुमारी आंदोलन ने जो देश की नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है, तो आज भारत में क्या बदलाव हो रहा है। एक थीम है, नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, फीमेल जस्टिस, फीमेल डिग्निटी, वुमेन इक्वालिटी। आज आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले भारत की बेटियों को एयरफोर्स में सिर्फ हेलीकॉप्टर चलाने का अधिकार था, वो फाइटर वुमेन प्लेन नहीं उड़ा सकती थी। हमारे मोदी जी ने कहा नहीं, हिंदुस्तान की बेटियां फाइटर प्लेन भी चलाएंगी, उनमें हिम्मत है, और आज उनको अवसर मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे पोस्टल विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं को इतना पैसा जमा करिए तो मैट्रिक पास करके आगे बढ़ेंगी तो उनको 6.5 लाख की राशि मिलती है। 1 करोड़ से अधिक बच्चियां उसमें पंजीकृत हुई हैं। ये उज्ज्वला योजना, 8 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस दिया है जो धुएं से परेशान हुआ करते थे। उजाला योजना, डिजिटल इंडिया, हमारे अंदर कॉमन सर्विस सेंटर काम करते हैं, वो पहले 80,000 थे, मैं उनको ले गया हूं 3.25 लाख तक, देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, और 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं और गांव में बैठकर डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। भारत के आईटी क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा 40 लाख लोग काम करते हैं डायरेक्टली, 1.25 करोड़ इनडायरेक्टली, इसमें 1/3 महिलाएं काम करती हैं। अभी चंद्रयान मंगलयान गया था तो आपने देखा होगा उसमें वैज्ञानिकों में भारत की महिलाएं भी थी, और आज भारत की बेटियां ओलंपिक कुश्ती में भी मेडल जीत रही हैं। तो आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, एयरफोर्स का प्लेन चलाना, कुश्ती में मेडल जीतना, और साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना। ये जो भारत की नवजागृति है वो कब होता है? वो ब्रह्मा कुमारी का आंदोलन तो देश की नारी शक्ति को आगे लेकर बढ़ा है। तो आज भारत की नारी शक्ति में एक नई ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा का हम सम्मान करना सीखें। और मैं हमेशा मानता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को चलाने वालों को इस देश की नारी शक्ति का पूरा सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो भारत की परंपरा है, यही तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है। देवी क्या है? सीता राम, सीता पहले है, राधा कृष्ण, राधा पहले है,
गौरी शंकर, गौरी पहले है। एक दो दिन नवरात्र शुरू होने वाला है, मां की आराधना है। ये मां क्या है? ये गार्गी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, जो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सेविका थी, मां शारदा देवी। यहां राजयोगिनी दादी जानकी मां 104 साल की उम्र में भी आध्यात्मिक परंपरा को आगे लेकर चल रही है। यह है भारत की विशिष्टता, यह है भारत का व्यक्तित्व। और आज आपको मुझे एक बहुत रोचक खबर देनी है कि भारत की लोकसभा में आज तक के इतिहास में सबसे अधिक वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 74, यानी 14% से ज्यादा। ये जो भारत का बदलाव हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस पावन अवसर पर मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना क्या है? इस देश में आलोचना होती है, नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म, लेकिन एक काम कम होता है, आशा जगाना, टू क्रिएट होप। इस देश में बहुत कुछ है। आज जो इस देश में मैं देख रहा हूं आईटी मंत्री के रूप में, जो देश के नौजवान प्रतिभा स्टार्टअप मूवमेंट में दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो मुझे जरा भी शंका नहीं है कि भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारत का इष्ट क्या है? क्या हमें दुनिया की सिर्फ आर्थिक ताकत बननी? क्या हमें दुनिया की सिर्फ सामरिक ताकत बननी? Are we to become only an economic power or a military power? No. India has to become also a spiritual power designed to educate the world. यह है भारत की दृष्टि, यह है भारत की सोच। ब्रह्म कुमारी आंदोलन भारत के उस महान लक्ष्य को हमेशा मजबूत करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत शुरू से लेकर के सबके आगे मार्गदर्शक रहा है, अभी भी बनेगा, और वह दिन दूर नहीं जब इस भारत देश के अंदर राम राज्य होगा, स्वर्ग की धरनी होगी, सभी सुखी होंगे। जिस प्रकार से आपने हर क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जबकि भारत के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ सारे विश्व के सामने एक गाइड के रूप में होगा, लाइट के रूप में होगा। अब इसके बाद हमारे ऑनरेबल श्री रविशंकर प्रसाद जी, ऑनरेबल श्री जी किशन रेड्डी जी तथा भ्राता बी पार्थ सारथी रेड्डी जी का सम्मान किया जाएगा। ऑनरेबल श्री रविशंकर प्रसाद जी, ऑनरेबल श्री जी किशन रेड्डी जी एंड भ्राता बी पार्थ सारथी रेड्डी जी फ्रॉम हैदराबाद आपका भी सम्मान कर रहे हैं। और अभी हम सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे।
After this, now we listen greetings from Dr. B. Parthasarathy Reddy ji, CMD, Hetero Group from Hyderabad. And now we listen greetings from Dr. B. Parthasarathy Reddy ji, CMD, Hetero. Om Shanti. Most respected, our loving Rajyogini Janki Dadi ji, respected central ministers, dignitaries, eminent personalities on the dais, loving brothers and sisters of Brahma Kumari. A warm good evening to all of you. On this auspicious occasion, I pray Baba to bless all of you and the entire global humanity. Thank you. आप सभी हमारी आदरणीय दादी जानकी जी से कल से मिल रहे हैं। दादी जी को देखते जीवन के अंदर एक नई शक्ति का स्रोत जागृत हो जाता है। किस प्रकार से इतनी बड़ी एज होते हुए भी दादी जी बिल्कुल टाइम पर एक्यूरेट, सबको परमात्मा की याद दिलाती, हमेशा कहती कि परमात्मा हमारा साथी है, शिव बाबा हमारा साथी है। तो दादी जी से हम इतनी प्रेरणाएं लेते हैं और दादी जी को देखना जीवन के अंदर नई उमंग का स्रोत जागृत हो जाता है। अब हम सुनेंगे आदरणीय दादी जी से वरदानी बोल दादी जानकी जी। ओम शांति। सभी बोलो बहन भाई। ओम शांति। तीसरा बारी ओम शांति। 3 बार क्यों मैं बोलती हूँ? जो जब भी मैं सेवा पर विदेश में गई थी तो मेरे बाबा ने कहा, बच्ची जा रही हो क्या? मैंने कहा, बाबा मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, उसको ऊपर वाले को मुझे ले जा रहा है। क्यों? ऊपर वाला यूनिटी अभी हमारे यहाँ भारत में मैंने अभी कुछ दिनों से ये अच्छी बातें सुनी है। क्या सुनी है? मैं समझती हूँ ये डायमंड हॉल में ये सारा संगठन एक एक देख रहा है मुझे क्या परिवर्तन लाना है। अपने लिए बात करो, इनको ये करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता। मुझे क्या करना? हर एक इस चिंतन में मुझे अपने चिंतन में नहीं लो रहा। परमात्मा बाप अपने चिंतन में रखे हमको, कोई चिंता नहीं है। मैं आज मुझे बहन जी कहती है तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। कभी सुनो, मेरा बर्थडे तो भी मनाओ जब भी मैंने देखा है, कभी भी मुझे टेंशन नहीं होता। यानी भले कितने सालों से भारत में चाहे विदेश में सेवा का मुझे भाग्य है। सेवा क्या है? शांति,
प्रेम, खुशी, धीरज। क्योंकि जब धीरज नहीं है ना तो शांत नहीं है। धीरज मीठा बना दिया। जल्दी जल्दी में जो आए तो बोले नहीं, क्योंकि हमारा, हम अभी कहते हो हमारा भारत है। भारत को देवों का स्थान माना जाता है। चारों तरफ अच्छे मंदिर है, भले मस्जिद भी है। हमारा फर्ज रहता है शांति से काम लेना, शांति से चेहरा मुस्कुराया हुआ है। कैसी मुश्किल बात आ जाए, बात चली जाएंगी। मुस्कुराना हमारा यादगार है। अभी हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली समझ रही हूँ। मैं कौन, मेरा कौन। जब मैं और मेरा, मेरा है ऊपर वाला, मैं हूँ आत्मा, वो है परमात्मा। परंतु उसको भगवान भी कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मुझे भाग्य बनाने के लिए परमात्मा बाप ने ऐसी गुप्त गिफ्ट दिया। बच्चे जहाँ बैठो ना, जितना टाइम बैठो, शांति और प्रेम, ऐसे वायुमंडल में मेरा भाई, आपको जानना है ना, परंतु ये आया, अच्छा किया, पर हम मिल करके क्या करेंगे, क्या करेंगे? बस आपके आशीर्वाद से काम करेंगे। आपके आशीर्वाद से काम करेंगे। अब इसके बाद MOU साइन हो रहा है विद डॉक्टर राजीव त्यागी, प्रो चांसलर श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गुजरावाल UP। छुट्टी ले रहे हैं। अब MOU जो कि साइन किया है, एक्सचेंज किया है, and after that, and now the brother is giving a gift to Dadi, and you can give it from Russia. He is giving gift to Dadi, and after that, Brother Manoj Mathur जी, एडिटर जी राजस्थान, 2 मिनट में अपने ग्रीटिंग्स देंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मनोज माथुर अभी हमारे बीच में, एडिटर जी राजस्थान जयपुर से आए हुए मिस्टर मनोज माथुर आज के इस दिन पर अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। आदरणीय सभी महानुभाव जो यहाँ सभा में हैं और सम्मानित मंच, आप सभी को मेरा नमस्ते। ये मेरा पहला मौका है जब मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम के संपर्क में आया हूँ, और ये देख के खासा अभिभूत हूँ कि चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण का जो एक कवायद ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से चलाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आने वाले समय के अंदर अपना वो स्वरूप सामने लाएगी जिस उद्देश्य के साथ हम लोग साथ में काम करने के लिए चल पड़े। मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव जो कि उम्र में सभी मेरे से बड़े हैं,
तो उनका तजुर्बा भी मेरे से बड़ा है। उन सबकी बातें सुनने के बाद एक जो अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं सबसे इम्पोर्टेंटली कहना चाहूँगा वो ये कि ये बात सच है कि जिस मीडिया फील्ड से मैं आता हूँ उसकी प्रतिभागिता बड़ी है समाज निर्माण में, लेकिन ये भी सच है कि हमारे जर्नलिस्टिक फ्रेंचाइज को जिस आत्मा की, जिस कंसेप्ट नोट की जरूरत है, वो मुझे लगता है कि ऐसे मंच और ऐसी संस्थाओं से लगातार मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का शुक्रिया। आशा करता हूं कि हमारे इस मिशन में, जिसमें हम ये कल्पना करते हैं कि हम आध्यात्मिकता के साथ इस देश को उस परम वैभव पे ले जाएंगे जहां कभी वो स्थापित था। आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much for beautiful talk. And now we listen song by Desert Rose Group of South Africa.
Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hey, hey, hey. Om Namah Shivaya. 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 बहुत सुंदर। जब हम दिल की लगन से परमात्मा को याद करते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। एक बार फिर से करतल ध्वनि से हम आपको थैंक्स देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल and we all enjoyed. And now we listen greetings from Sister Santosh of Russia. रशिया से आई हुई संतोष बहन आज के इस शुभ अवसर पर ग्रीटिंग्स देंगी। मेरे आदरणीय दीदी संतोष और हमारे डिस्टिंग्विश्ड भाई जो अभी बहुत सब कुछ बोल चुके हैं, आखिर में दो बातें जो मेरे मन में दिल में हैं मैं कहना ज़रूरी समझती हूँ कि भारत की महिमा हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा और कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। लेकिन भारत का एक गिफ्ट नारी पूरे विश्व के अंदर प्रेरणा का स्रोत है। उसकी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन हजारों कहानियाँ मैंने अपने सामने बनते देखी हैं। पिछले 30 सालों से जब से सोवियत यूनियन की एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से ब्रह्मा कुमारीज को निमंत्रण मिला, तो ये 30वां साल चल रहा है। अभी सितंबर में 30 वर्ष हुए। तब से लेकर के आज दिन तक फॉर्मर सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ में हमने पैर रखा है, तो उन्होंने एक मत से कहो, एक दिल से आवाज़ उनकी निकली कि हम अपने जीवन में सपना देखते थे कि अगर चैतन्य रूप से इंडिया की कोई नारी हमारे सामने आएगी तो हम उनको टच करके देखेंगे कि वो किस चीज़ की बनी है। क्योंकि उनका भारत से परिचय बॉलीवुड से था, जहाँ पारिवारिक फिल्में जब वो देखते थे कि कैसे नारी इंतज़ार करती है अपने परिवार का, पति का, तब तक खाना नहीं खाती जब तक सब लोग नहीं घर में आ गए, कैसे त्याग करती है, कैसे सबको बांधने का काम करती है, तो उनको विश्वास नहीं होता था कि ऐसी भी महिलाएं हैं। क्योंकि जिन महिलाओं को वेस्ट ने तैयार किया है वो बाहुबल में, तकनीकी के बल में बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन अध्यात्म बल, चारित्रिक बल, मनोबल उसमें तो
भारत की नारी ही टॉर्च बेयरर है, थी और रहेगी। और ये शब्द मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने इनको हजारों बार अपने कानों से सुना है। उनको कहते हुए वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर हमें बुलाते हैं कि आकर के सिर्फ दर्शन दीजिए, सिर्फ बैठ जाइए, क्योंकि हमें विश्वास है कि जहाँ आप होंगे वहाँ पर हमारा कार्य सफल हो जाएगा। तो ये वो पवित्रता का गिफ्ट जो परमपिता परमात्मा शिव हम माताओं बहनों को दे रहे हैं। आज से 45 साल पहले मैं भी आरएसएस की एक्टिव दिल्ली की मेंबर थी और तलवार चलाना, आग पे कूदना और दिल्ली की जो कन्या शाखा की हेड होने के नाते सब मीटिंग्स करना, बाढ़ में आए हुए पीड़ित लोगों को मदद करना करते थी। फिर कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन की जब मैं प्रेसिडेंट रही तो मुख्य रूप से मुद्दा जो होता था कि कैसे रैगिंग से कन्याओं को, बहनों को बचाया जाए। लेकिन मैं देखती थी कि हमको रुलाया जाता था जब भी हम किसी मुद्दे को आगे बढ़ाते थे, कहीं पर रास्ता साफ नहीं होता था। तो इसी सिरदर्द को लेकर के मैं 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए माउंट आबू आई और उसके बाद वापस नहीं गई। और क्योंकि वहाँ मैंने अपनी ऐसी बहनें, हमारी संतोष दीदी, शशि दीदी जो बैठे हैं, हमारी दादियाँ, मुझे उस समय आध्यात्मिकता से बहुत एलर्जी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे लेक्चर दे, लेकिन इनके शांत चेहरे, इनके माथे से निकलते हुए बहुत शुद्ध वाइब्रेशंस, उन्होंने मुझे बहुत शांत किया। तो जाकर के यहाँ पर कुछ खटका हुआ कि अरे शांति भी शक्ति है, क्योंकि मैं शांति को एक छोटी वैल्यू मानती थी, थोड़ी कम हिम्मत वाली शक्ति मानती थी। मैं समझती थी बोलना और कुछ करना समाज के लिए, लेकिन पता पड़ा कि आप शांति से मन को बदल सकते हैं। तो मुझे आया कि अब मुझे ये पावर चाहिए। वो जूडो, कराटे, तलवार चलाना जिनको करना है वो करें। मुझे तो विश्व के अंदर अभी इस शांति की शक्ति से परमात्मा का मैसेंजर बन करके महिला का जो रूप है देवी का, उस रूप को सामने रखते हुए विश्व की सेवा करनी है। तो इन शब्दों के साथ मैं कहती हूँ बहुत बहुत बधाई है जो आप सब यहाँ आए और जितना भी समय है पूरा फायदा लीजिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर अनुभव जो इस विद्यालय में प्राप्त होता है। जिसने पाया उसने अपना जीवन बनाया और दूसरों का भी बनाया। आप रशिया में रहते हुए ना जाने कितने आत्माओं के जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी भ्राता नथमल जी को, जो कि कटक से आए हैं और कटक में रहते हुए आपने अनेक सेवाएं की हैं। लगभग 40 साल से राजयोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप तो अथक सेवाधारी हैं। आपके मन में सदा रहता है कि बाबा का परिचय हर एक आत्मा को मिले, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई साधारण हो, किसी भी वर्ग का हो, सबकी सेवा में आप सदा ही तत्पर रहते हैं। भ्राता नथमल जी। ओम शांति। ये हमारा सौभाग्य है उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में इस सभा मंच पर भले ही हमारे सामने नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम को ऊर्जा देने वाली परम आदरणीय दादी जानकी जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम भी सभी सभा में उपस्थित जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा दादी जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आज इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ऊर्जा मिल रही है वो परम आदरणीय दादी जी के द्वारा मिल रही है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप से
भले उनको जरूरी काम से अर्थात वापस जाना था। तो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अमूल्य समय निकाल करके इस बढ़ाया और ख़ास उन्होंने बहुत ही अपने सुंदर शब्दों के द्वारा हम सबको उत्साहित भी किया। और उनके साथ साथ हम धन्यवाद देंगे भ्राता किशन रेड्डी जी को, जो खास होम अफेयर्स को संभालते हुए इस मंच पर उपस्थित हैं और उन्होंने अपनी गरिमामय भाषण के द्वारा हम सभी का मन बहुत ही उत्सुक किया। तो हम फिर से किशन रेड्डी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में हमारे ब्रिजमोहन भाई जी जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और इस संस्था को आगे बढ़ाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी संतोष दीदी जी जो खास महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज हैं और आप बहुत ही सौम्य, बहुत ही निर्मल चित्त होकर के इस कार्य को चला रहे हैं और देश विदेश में भी आप सेवाएं दे रही हैं। हमारी संतोष बहन जो खास रसिया से आपने उनका विचार सुना, उनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। भ्राता मनोज माथुर जी का, भ्राता गोपाल नारायण जी का, फौज मम्मा दौका जी, पार्थसाथ रेड्डी जी का, भ्राता आत्म प्रकाश जी का, साथ साथ इस कार्यक्रम के बीच में हमारे मृत्युंजय भाई जो इस कार्यक्रम को पूरी संचालन करते हैं और आज कितने दिनों से कहें, महीनों से कहें, इस कार्यक्रम की योजना बना करके उसका आज प्रैक्टिकल रूप दिया। तो हमारे मृत्युंजय भाई जी का जितना भी हम दिल से धन्यवाद करें वो कम है। उनके लिए भी हम जोरदार ताली से हमारे मृत्युंजय भाई जी का धन्यवाद करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि और हमारी शशि बहन जो इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर रूप से संचालन कर रही हैं, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद है। हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिकता के बिना हमारा जीवन नहीं है और आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है शांति, प्रेम, एकता और पवित्रता। तो इनके बल पर ही हमारा भारतवर्ष टिका हुआ है। जब हमारा इसमें थोड़ा सा भी कमी आती है तो हलचल पैदा हो जाती है। तो इसलिए भारत की जो गरिमा है वो इस आध्यात्मिकता के ऊपर है और भारत इसी आध्यात्मिकता को लेकर के विश्वगुरु था, फिर से विश्वगुरु बनने वाला है। तो इसलिए ये आध्यात्मिकता की जो पहल है बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन उसका एक, जिसको हम ये कहें कि उसका एक स्वरूप ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने बन करके और आगे ले जाने का काम किया है। इसलिए हम सभी उसके साथ में सहयोग दे करके और इस पूरे भारत को विश्व का गुरु बना करके इस आध्यात्मिकता का परचम लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का पूर्ण रूप से धन्यवाद देता हूं। और सामने भी जो हमारे विद्वान बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस सभा में आकर के योगदान दिया और सभी मीडिया के भाइयों से, बहनों से और जिनको सम्मानित किया गया, सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। ओम शांति। आप सबकी तरफ से नथमल भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अथक सेवाएं करते हैं।